In the last lecture, we discussed what is stress. In fact, we discussed a lot. I think almost half an hour we discussed what is stress. सर And आपका वॉइस for ब्रेक हो every रहा है बहुत. वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी? नो सर. नहीं सर, बराबर. नहीं ना, हो सकता है नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हो सकता है either from your end or my end also. Sometimes it becomes unstable. So if it happens, then kindly let me know. Anyone, ना अगर किसी और एंड पे भी अगर होता है तो बोल दो मेरे को. तुम्हारे एंड पे भी अगर किसी एक को भी लगता है ऐसा वॉइस ब्रेक हो रहा है तो बोल दो. I will just pause for a few seconds and then we can start. Okay. Now, last time we discussed what is stress, what is the definition of it, and how do we define stress, and when do we say stress. Stress is not in one form, as discussed last time. It comes in multiple forms. Multiple form means it can come in any ways. Someone is having a family issue, uska stress. Someone is having the personal life ka issue, uska stress. Someone is having the financial ka issue, uska stress. Someone is having the social issue, uska stress. So wherever you go, you will find this stress just like your Vodafone car network. Wherever you go, I will follow like a pug. जैसे एड में दिखा देते पहले वैसा. It is just following, it is not working. It is just following. Okay. So everyone has a different definition for stress as per their thinking, as per their concept. Okay. Now, what does Edward Jordan quote a project manager as? Once a project gets rolling, you should be expecting members to be putting in at least 60 hours a week. 60 hours a week. Okay. The project manager must expect to put in as many hours as possible. 60 hours a week. And you know that in IT sector, there are 5 working days, Monday to Friday, right? So if I divide 60 hours per week, Monday to Friday, 5 days, so how much do you expect in a day? How many hours it comes out then? 12 hours. 12 hours a day. 12 hours. Do you think working for 12 hours is good for health, mental health, physical health, and everything? Because in IT sector, now it is work from home, but earlier, when it was not there, you have to stick to at one place and do work. And that would have been continuously for stretched for 3 to 4 hours. So sitting in one posture continuously for 3 to 4 hours looking at the computer screen, don't you think that will be affecting your indirectly your vision as well as your body posture also? That will be taking a stress on your back, infecting or affecting your spine cord. So project manager expecting 60 hours a week, in fact including him also. So the project manager must expect to put in as many hours as possible. In 1960 in US, people under 45 who worked more than 48 hours a week, twice the risk of death from coronary heart disease. Obviously, what is the job of the heart? Just to pass from one person to another person, ना? दिल का काम क्या है? यहाँ से वहां घूमने का सिर्फ. इसके पास गया, एक्सेप्ट किया तो ठीक, नहीं किया तो दूसरे को पूछो. नहीं सर, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का. Okay, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का. Okay, accepted. Can you tell me when your body gets full supply of blood, oxygenated blood, not just blood, oxygenated blood? When your body gets fully oxygenated blood? Yes, Singh Sagar. वर्कआउट के बाद. सिंह सागर कुछ बोलना चाहता है, अनम्यूट किया था उसने. सिंह सागर. सर. क्या काम होता है दिल का? ब्लड सप्लाई करना बॉडी को. ब्लड सप्लाई करना कहाँ से? ब्लड बैंक से? नहीं सर, पूरे पार्ट में ब्लड सप्लाई. कहाँ से?
कौन सा ब्लड? कौन से ब्लड सप्लाई करना? जो उसका ब्लड है। हाँ ह्यूमन ही, ह्यूमन क्या रे, ह्यूमन हाँ, ने लिविंग ह्यूमन बीइंग बोल, ब्लड। जानवरों में ब्लड नहीं होता क्या बे? ह्यूमन ने लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग में ब्लड सप्लाई करना काम हार्ट का है, लेकिन कौन सा ब्लड सप्लाई करता है हार्ट? सर दो यस होते हैं मोइन, तो। यू आर सेइंग समथिंग। मोइन खान। हाँ सर। हाँ सर। क्या बोल रहा था तू? कब कब किया था ब्लड को सप्लाई? हमेशा करता है सर। हाँ तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो काम है हार्ट का, तो वो सप्लाई कब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? सर वो तो सप्लाई होते ही रहता है ना पूरा हाँ टाइम। हाँ तो सप्लाई होते ही रहता है ना। हाँ लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट 1960 वाला, वो पढ़ के जरा हाँ बता फिर ये क्या स्टेटमेंट है, ये पढ़ा है क्या? 1960 पढ़ो study in पढ़ो। US, people under 45 who work more than 48 hours a week, twice the risk of death from coronary heart disease। मतलब क्या है इसका? सर जब एक ही सर पोजीशन पे 45 से कम एज वाले 48 आवर्स से क्या लिखा है सर ये? वर्क मोर देन फोर्टी वही एट तो मैं आवर्स अ पूछा हूँ, वीक क्या लिखा है? बकवास लिखा है ना। आवर्स अ वीक ये अरे सर मतलब अंडर 45 जो भी है ना, वो 48 आवर्स अ वीक हम्म जो वर्क करते हैं ना, उसको रिस्क ऑफ डेथ ट्वाइस रहता है हम्म कोरोनरी हार्ट हार्ट डिजीज से। मतलब दो बार मरते हो? मतलब दो नहीं बार मरते हो? नहीं, जान का खतरा मतलब 2 बार रहता है। जान का खतरा? अरे किसकी सर जान, तेरी मतलब जान या मेरी जान? 48 अरे एक वीक में 48 आवर्स मतलब सर 2 बार मतलब 48 आवर्स काम करेंगे ना, तो रिस्क ऑफ डेथ ज्यादा ज्यादा रहता है। हाँ बेटा, वैसे देखा है तो हम लोग यहाँ पे 10 से 15 घंटा काम करते हैं एक दिन में, मंडे टू सैटरडे। तो हम लोग तो साढ़े 90 पता घंटा काम नहीं करते हैं, जल्दी मर जाने, चलो 60 से 90 घंटा काम करते हैं हम लोग। तो अगले लेक्चर के लिए हम लोग आना ही नहीं चाहिए, मर जाने चाहिए। सर उन लोग अंडर कमजोर 45 लिखा है रहेंगे। ना? हाँ अंडर 45 लिखा है ना? तो मैं ओवर 45 हाँ नहीं हूँ, याद रखना जरा बेटा, अंडर 45 हूँ मैं भी। सर आप स्ट्रांग हो। सो व्हाट डू मीन बाय दिस? हाँ पता है, आर्म सर स्ट्रांग है, पता है, नील आर्म स्ट्रांग है, वो नील आर्म स्ट्रांग है। सर बोलो सीजो। सर ये स्टेटमेंट बेसिकली ऐसा बोल रहे हैं कि सर अभी जैसे वर्किंग आवर्स सब आईटी कंपनीज के 6 आवर्स टू 8 आवर्स है, तो भी अगर 6 मतलब हम्म मोस्टली संडेज को छुट्टी रहता है, तो अगर सिक्स सिक्स सैटरडे संडे, आवर्स सैटरडे संडे, हाँ सर सैटरडे संडे। नो सर, कोई कोई कंपनी संडे को देते हैं और कोई कोई सैटरडे को देता है। सैटरडे संडे मुश्किल से मिलता है मोस्टली जो सर। स्टेबल कंपनी ना, हाँ सर। यस, जो स्टेबलाइज कंपनी है वो लोग सैटरडे संडे छुट्टी देते ही है। हाँ हाँ सर। तो उन लोग के हिसाब से सर अगर 6 घंटे ओके। का वर्किंग आवर रहेगा, तो 6 into 6 डेज हाँ 36 आवर्स। बट अगर एक वीक में अगर 8 घंटे का हम्म रहेगा, 8 घंटे का रहेगा, तो 6 into 8 48 आवर्स। तो सर 48 आवर्स के ऊपर हम्म जो एक वीक में काम करता है उन लोग को हार्ट कोरोनरी हार्ट डिसीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। मतलब मतलब सर कि अभी कोरोना पहले बेसिकली से आ चुका है अभी, अब कोरोना की वजह से तो लंग्स डिजीज आ ही रहा है, तो कोरोना मतलब क्या, कोरोना ही मतलब क्या? सर एक ही जगह पे कोरोनरी आर्टरी होता है ना। आराम से हर एक जन एक एक करके बोलो, हाँ बोलो चीज, कंटिन्यू कर। सर कोरोनरी हार्ट डिसीज पता है, कोरोनरी नहीं पता सर, बट बेसिकली सर जब कोई भी एक बंदा एक पोजीशन पे बैठा रहते हो, तो सर स्मार्ट बैंड में भी जो यूज करते हैं ना सर, जो स्मार्ट डिवाइसेस वेरेबल्स, तो आफ्टर एन हाँ आवर अगर एक ही पोजीशन पे रहेगा तो वो नोटिफिकेशन पॉपअप करता है कि आइडल फॉर 1 आवर, मतलब हम्म बैठे ही हो 1 घंटे, जरा मूव हो कर। हम्म
सो सर प्रॉपरली हाँ बॉडी के अंदर वो मूव, जो इंसान अगर थोड़ा बहुत वॉकिंग करेगा 1 घंटे के अंदर, मतलब काम करने के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेके वॉक करेगा तो उसके लिए वो अच्छा है, हेल्थ पे वो ये नहीं पड़ेगा। बट अगर सर कंटिन्यूसली बैठे रहेगा तो सर को किसी को भी कुछ ना कुछ बीमारी तो होएगा ही ना सर। मोस्टली विजन और हार्ट को पड़ता है। ओके ओके। सी हार्ट डिजीज मतलब नॉर्मल हार्ट डिजीज, लेकिन जो हार्ट डिजीज कोरोना की वजह से हो वो कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है। नहीं सर, नहीं नहीं सर, वो हार्ट नहीं अटैक आता है, नहीं वो कोरोनरी नहीं आर्टरीज में ब्लड शैलेश जमा हो पुजारी, जाते ना, तो सॉरी। नहीं सर शैलेश, नहीं शैलेश पुजारी, यस सर। हाँ बोले बेटा, कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब जो कोरोना से होता है वही ना हार्ट डिजीज। नहीं सर, कोरोनरी आर्टरी करके एक रहता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है हार्ट में। हाँ तो सर उसमें अगर कुछ ब्लॉकेज रहा या फिर तो हाँ हार्ट पे प्रेशर आता है, फिर हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। अल्लाह, तेरा बात सुन के तो मेरे को डर लगने लग गया रे, छाती में धड़धड़ होने लग गया। मुझे हो गया क्या? नहीं और कोई कुछ बोलना चाहता है भाई, इससे पहले मैं मर जाऊं? बताओ कोरोनरी हार्ट डिजीज होता क्या है? सर अटेंडेंस दे दो। प्रभात मिश्रा निकल बाहर, तू रुक जा, रुक रुक, प्रभात मिश्रा को निकालता बाहर, रुक, उसका अटेंडेंस चाहिए। रुक रुक, प्रभात मिश्रा अरे जाओ नहीं वेटिंग रूम नहीं, में, गया वेटिंग रूम में प्रभात मिश्रा, अटेंडेंस वाला आया, चला रुक, उसको लेता मैं अभी। ओके, सर सेकंड एनीवन पॉइंट एल्स? एक्सप्लेन करना है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज एक्सप्लेन करना है। वही कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करना है मुझे पूरा। हाँ तो सर इसमें लिखा है कि वो 1960 में एक स्टडी में बताया यूएस में कि जो लोग 45 के अंडर एज, जिनकी 45 के बिलो है और जो 48 आवर्स से ज्यादा काम करते हैं, उनका रिस्क मतलब रिस्क डबल हो जाता है कोरोनरी हार्ट डिजीज से मरने का, ऐसा लिखा है वो पॉइंट। अच्छा, मतलब 1960 में बोला गया था कि कोरोना आने वाला है, उससे हार्ट डिजीज बढ़ने वाला है करके, तभी से बोला गया था सर कोरोनरी हार्ट डिजीज, मतलब कोरोना की वजह से तुमको हार्ट डिजीज होने वाला है करके। सर कोरोना एंड कोरोनरी, नारी और नर का फर्क है सर। हाँ, क्या फर्क है बेटा यहाँ पे? सर सर तू बहुत स्टडी किया लगता कोरोनरी है एक कोरोनरी आर्टरी एंड सर, कोरोना पे। सर कोरोनरी एक आर्टरी है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, और कोरोना एक वायरस या कुछ तो है जो अभी रिसेंटली आया, ये तो जो वो भी 1960। ह्यूमन के अंदर आ चुका है, ह्यूमन के अंदर आ चुका है वो। तो यहाँ पे कोरोनारी, नारी कितने साल से अकेली थी, तो उसका मियाँ भाई आ गया कोरोना, अब दोनों अंदर एंजॉय कर रहे हैं। सर सर कोरोना एक वायरस है और कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज होता है। बेसिकली कोरोनरी आर्टरी एक ऑर्गन है और कोरोना एक वायरस है, अलग है ना, डिफरेंस है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सी बेसिकली whenever you are working in shift, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, राइट, जिसको मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट शिफ्ट भी बोलते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास कितने दिन रहते हैं? एक दिन में कितना घंटा रहता है? 24 hours. 24 hours, okay, and we are working in how many shifts? One shift? नो नो नो, इन जनरल कितने शिफ्ट होते हैं वर्किंग के? 3 shifts are there, so each shift is comprising of how many hours? 6 to 8 8. hours. 8 hours, okay. Now 8 hours एक दिन में होता है, वैसे मेरे 5 दिन का काम रहता है आईटी का, बराबर है, मंडे टू फ्राइडे, इफ यू कंसिडर सैटरडे संडे हॉलिडे, दैट इज यूनिवर्सल. So 5 days and 8 hours per day. So total how many hours a week? 40 hours. 40। अरे बेटा 5 8 का 40 होता है, 5 8 का 45 कौन सा मैथ से पढ़ा है रे तू? हाँ, 45 वाला कौन है वो? So basically how many hours? 40 hours. 40 hours per week. देखो नीचे दिया लास्ट पॉइंट में, एक्सपी प्रैक्टिस मतलब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस,
मतलब ज्यादा से ज्यादा तुमको 40 आवर्स पर वीक काम करना है। तो अगर तुम्हारा 6 दिन भी अगर वर्किंग पकड़ लो तो 6.5 to 7 आवर्स, मैक्सिमम 7 आवर्स पर डे, क्योंकि 6 7 42, 6.5 बोल दो, 6.5 into 6 39, तो 39 से 42 यानी कि 6.5 to 7 आवर्स पर डे। That should be the maximum if you are working for 6 days in a week. But if you are working for 5 days in a week, so 5 8 are 48 hours per day. So that has to be there basically. But are we working for that much hours? No, we are working obviously double the requirement. Not at least double, at least 1.5 times तो काम करता ही करता है। 12 घंटा तो यहाँ पर इंसान काम करता ही करता है। सी यहाँ पर काम करने का मतलब ये नहीं है कि 8 आवर्स ऑफिस में रहने का। यहाँ पे 8 आवर्स मतलब ये होता है कि आफ्टर 8 आवर्स योर बॉडी शुड रिलैक्स फॉर 16 आवर्स। बट हियर वी आर डूइंग द completely ulta. We are resting our body for 8 hours when we are sleeping, that too 8 hours I'm saying. When we go to sleep, our body is not thinking at all. It is like a dead body without any movement. But as soon as you get up, you start getting some other thinking. अरे कल मेरा एग्जाम है, अरे विनय सर का लेक्चर है, स्ट्रेस आ रहा है यार, उसने असाइनमेंट देने के लिए बोला, पागल हो गया, वो चिल्लाते रहता है यार, लेट जाते हैं, ये होता है वो होता है, तो तुम लोग को स्ट्रेस आ जाता है। फिर बाद में तुमको कुछ यहाँ पर बोल दिया दूसरा कुछ और काम करने के लिए, मेरे सब्जेक्ट के अलावा किसी और ने बोल दिया, और यार उनका भी करने का, यार इनका भी करने का, ये करने का, वो करने का, यू एनकाउंटर स्ट्रेस। सो मैक्सिमम यू शुड एंगेज योर बॉडी माइंड फॉर वर्क, दैट इज 8 आवर्स पर डे एंड मैक्सिमम 40 आवर्स पर वीक। इफ यू आर वर्किंग फॉर 40 आवर्स पर वीक इंक्लूडिंग एंड एवरीथिंग, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, then obviously you will not be having this heading in your life. But there is no firm, there is no company, there is no job place where you work only for 8 hours and rest 16 hours. Next 16 hours you do rest. अभी यहाँ पर तो हालत ये है कि 8 घंटे ड्यूटी और 8 घंटे ट्रेवलिंग होता है पब्लिक का। क्यों? 4 घंटा आने के लिए, 4 घंटा जाने के लिए। अगर मैं कांजूर से, अगर मैं बैंड्रा या दादर साइड काम कर रहा हूँ, या तो फिर उसके आगे सीएसटी साइड पे काम कर रहा हूँ, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड हूँ, और अभी फिलहाल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ 2 ही चालू है, ऑटोज एंड बसेस, कार कैब जो भी रहेगा वो, प्राइवेट ऑटोज एंड बसेस, पब्लिक बसेस। तो अब सीएसटी जाना रहेगा कांजूर से, तो 500 रुपये एक टाइम का पकड़ लो, 500 रुपये वापस आने का पकड़ लो, वापस आऊंगा भी ना, तो 1000 रुपये मेरा दिन का खर्चा है सिर्फ ट्रेवलिंग का। और मैं महीने में से 20 दिन भी अगर पकड़ लो जाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, 20 डेज भी अगर सैटरडे संडे छुट्टी छोड़ दिया जाए, 10 दिन छोड़ दिया जाए, तो 20 into 1000, 20,000 मेरा ट्रैवलिंग होता है। अगर मेरा सैलरी 1 लाख पर मंथ है तो 20,000 चलेगा, मैं अफोर्ड कर लूंगा। लेकिन मेरा सैलरी 10,000 है और मैं ट्रैवलिंग 20,000 हो रहा है, तो ट्रैवलिंग के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा 10,000 का एवरी मंथ। सो 8 hours we are working on in the office, and 8 hours means I'm saying that the more hours we are spending, or almost same hours we are spending in traveling also, because locals are not working. So had it been working, then we would have reduced it down to 1 hour. ट्रेन भी अगर छोड़ दिया, चढ़ने को नहीं मिलता है कांजूर से या जो भी रहेगा, गर्दी है या ये है वो है, तो 1 2 3 4 5 6 ट्रेन भी छोड़ देंगे, तो उसके बाद तो मेरा वहां पे रश कम हो जाएगा, मतलब ट्रैवलिंग का टाइम कम हो जाएगा, बस में रश कम हो जाएगा। बट सिंस नाउ इट इज नॉट द वर्किंग, ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड द ट्रांसपोर्ट इज आल्सो हैविंग अ स्ट्रेस ऑन इट ऑफ फेयरिंग द पीपल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड अगेन डेस्टिनेशन टू बैक टू होम। अगर तुम देखोगे तो वहां पर बीएसटी के बसेस के सपोर्ट करने के लिए एसटी बसेस भी छोड़ा गया है। अगर कहीं देखा रहेगा तुमने तो एसटी के बसेस भी बीएसटी की तरह वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी रहता है, आगे नंबर लिखा भी रहता है 461 ऐसा लिखा भी रहता है वहां पे। एसटी के बसेस को लाया गया है, व्हाई? टू रिड्यूस द स्ट्रेस और द प्रेशर ऑन बीएसटी बसेस, बिकॉज बीएसटी के बसेस भी लिमिटेड है, फ्लीट भी उनका लिमिटेड है, क्योंकि उनको जितने कस्टमर थे, ट्रैवलर थे, उसके हिसाब से उन्होंने बस बनाया है। लेकिन अभी ट्रेन बंद है तो सब पब्लिक ट्रेन से जाने वाले भी बस भी आ गए, तो बीएसटी पे प्रेशर आने लग गया, क्राउड ज्यादा बढ़ने लग गया और साइज भी कम है बीएसटी का, तो दे इंट्रोड्यूस दिस
एसटी का बस फॉर द टाइम बिंग, टेम्पररी बेसिस पे, क्योंकि एसटी का 50 सीटर कैपेसिटी रहता है। एक एक सीट पे भी अगर बिठा दो और 10-15 को खड़ा कर दो तो एक बीएसटी से भी ज्यादा लोग वहां पर आ जाएंगे। पब्लिक को कम्युनिकेट करने के लिए इजी पड़ेगा ये घूमने के लिए यहाँ वहां पे। सो दैट इज द थिंग। एंड व्हाट दे से मैक्सिमम 40 hours पर डे or per week your working should be. If you are working for that much hours, then you will not be encountering stress for any reason. Okay, clear with this slide, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Stress can be reduced by good project management. How can reduce stress? Read fatafat, everyone. Read. Any point need to explain? Kindly let me know fatafat. Done? Yes, sir. 46 participants. Any doubt? Yes, Anyone in any of the point? No, sir, no doubt. No, sir. No, sir. No, sir. Can we go to next slide? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Stress management. How do you manage the stress? You are getting the stress, accepted. If you are not managing, then you will succumb to stress, pressure, that SSR kind of case, suicide. You get that kind of thinking. You get that provoking thoughts, which tends you or which makes you to go to the extreme case. So to avoid that, what you need to do is you need to manage the stress. See, you will be having any kind of tension at any time in life. As soon as you get up, तुम्हारी आंख खुलते ही तुम्हारे टेंशन तुम्हारे दिमाग में आना चालू हो जाते हैं. How far you try to avoid it, you won't be avoiding it all the time. कुछ ना कुछ तो आएगा ही. कभी घर का मैटर, कभी पैसे का मैटर, कभी रिलेशन का मैटर, कभी पढ़ाई का प्रेशर और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स. तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों में झगड़ा हो गया, तुम्हारी किसी से बनती नहीं है, तुम्हारा झगड़ा होता है तुम्हारे फ्रेंड से, तो वो अलग से स्ट्रेस रहता है. तुम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, गुस्से में कुछ भी बोल देते हो. फिर तुम्हारे दोस्त लोग या तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज हो जाते हैं, तो उसका स्ट्रेस रहता है. फिर वहां पर बात नहीं हो पाती ठीक से, उसका स्ट्रेस रहता है. तो ऑल दिस स्ट्रेस दिस विल बी देयर फॉर एवर इन योर लाइफ. Till the last breath of your life, you will be having this stress. So how to avoid it? Or sorry, you can't avoid, but you have to manage. You have to live with the stress. जैसे अभी हमने सीख लिया कोरोना के साथ रहना, वैसे हम लोग को रहना है स्ट्रेस के साथ. तो कैसे करेंगे कैसे उसको हम लोग? सिंपल, आराम से मेडिटेशन करो, योगा करो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो. वर्कआउट मतलब जाके जिम में जाके वो 10-15 पाउंड का डंबल उठा के हाथ भी फाड़ने का नहीं, वहां पर मसल्स फाड़ के नहीं रहेगा. नॉर्मल एक्सरसाइज मतलब घर पे बैठे बैठे करो एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो. मेडिटेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेटिंग योर ब्रीदिंग. दैट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जस्ट फॉर 10 to 15 minutes अ डे. सिर्फ 10 to 15 minutes अगर तुम ये मेडिटेशन करते हो, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, अनुलोम विलोम बोलते हैं, you will be having its effect for lifetime. I am saying 10 to 15 minutes per day. Out of 24 hours, you can spend 10 to 15 minutes for your own body. I don't think so there is a big deal in it. And that is not necessary कि सर सुबह उठ के करना है क्या, दोपहर को ही करना है क्या, शाम को ही करना है क्या, रात को ही करना है क्या. जब भी तुम्हें टाइम मिले 10-15 मिनट के लिए तुम कॉन्सेंट्रेट करके तुम्हारे ब्रीदिंग पे ही ध्यान दो. Inhalation, exhalation. Just concentrate on that. And then you will see your body will be feeling fresh and your mind will be sharp now. Not in one day, not in 1 month. It takes years to retain your brain. Okay, or the memory. So that is also another way of managing the stress.
imagery, relaxation, and meditation. An example of a simple relaxation technique can be rolling the head from side to side. That means side में left में देखो, फिर right में देखो, फिर left में देखो, फिर right में देखो, up, down, left, right. ये जो एक्सरसाइज करते हैं ना हम लोग, तो उस वक्त क्या होता है ना कि हमारा स्ट्रेस जो है ना वो निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है, मतलब रहता है लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते. क्यों? मैं फिलहाल हेड को लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन ये करने में मैं बिजी हूं. तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान मेरे गर्दन पे जो मैं लेफ्ट राइट अप डाउन घुमा रहा हूं, तो वहां पर स्ट्रेस आ भी गया ना, उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा जितना मैं अभी इसको दे रहा हूँ गर्दन को घुमाने में. सो दैट इज व्हाट दिस ओवर हियर. सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक है ये. स्लोली लेफ्ट में देखो, फिर राइट में देखो, फिर लेफ्ट में देखो, फिर राइट में देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो. ऊपर देखो मतलब ऐसा नहीं कि गर्दन को पूरा आसमान में देखना है, ऊपर देखना नहीं. एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम योर एंड, जितना तुम ऊपर देख सकते हो उतना देखो, फिर नीचे देखो, फिर लेफ्ट में देखो, फिर राइट में देखो. सिंपल रिलैक्सेशन. कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोचेस इंक्लूड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ स्ट्रेस इंटेंसिटी. देखो, खुद एनालाइज करो. बोलते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, कि मैं कितना स्ट्रेस को हैंडल कर सकता हूँ. ज्यादा स्ट्रेस लूंगा तो क्या वो मेरे एग्जाम में परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहा है, या मेरे पढ़ाई पे अभी करंटली अफेक्ट कर रहा है, क्या उसकी वजह से मेरे घर में रिलेशंस खराब हो रहे हैं मम्मी पापा भाई बहन से. सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन बिहेवियर ऑल देयर. So that includes self-monitoring of stress intensity, thought record keeping, and rewriting, time management, assertiveness training, and increased social interaction. So if you keep yourself secluded from the crowd, see, keeping from the crowd is a different thing, and social distance maintaining is a different thing. तुम्हें लोगों से बात करना पसंद नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा फितरत हो सकता है, तुम्हारी आदत हो सकती है, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं तो लोगों से बात करनी पड़ेगी. मतलब कल को अगर तुम मार्केट जाओगे सब्जी वब्जी लेने के लिए, तो फिर जाकर तुम सिर्फ खड़े रहोगे दुकान वाले के सामने, वो खुद समझ जाएगा तुम्हें देख के, अरे हाँ तुम्हें आज ये सब्जी चाहिए, तुम्हें वो सब्जी चाहिए, इतना रुपए दिया है, उतना रुपए दिया है. यू हैव टू गो आउट एंड इंटरेक्ट विद पीपल. यू कांट से दैट कि आई एम इंडिपेंडेंट ऑन माई ओन. नो. So talking to people, discussing your problems and sharing your sorrows and everything will definitely reduce the stress on you, and you never know कि you might get the solution for your stress from someone else's experience or someone else talking. But if you don't come out of the home and say that कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बाहर है क्या करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, you will never come out of that word called stress. It will be haunting you forever your life till you die. उसका स्ट्रेस का काम ही वो रहता है. जितना हो सके उतने लोगों को सुला दो और यमराज के पास पहुंचा दो. अपना कॉन्ट्रैक्ट है यमराज के साथ. यमराज नहीं बोला स्ट्रेस को, तो जितना डेड बॉडीज लेके आएगा उतना तुझे कमीशन दूंगा. तो स्ट्रेस जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, ना ही तुम्हारी लाइफ से, ना ही मेरी लाइफ से, ना ही किसी जीवित प्राणी की लाइफ से. सर जीवित प्राणी मतलब जानवरों को भी स्ट्रेस रहता है क्या? रहता है ना, ऑब्वियसली. दे ऑल्सो लुक फॉर फूड हियर एंड देयर. दे ऑल्सो लुक फॉर द प्रोटेक्टिंग देयर ओन बॉडी फ्रॉम heat, from water, from cold, or from other place. They also look to rest in such quiet place where they won't be disturbed. अगर अपने गाड़ी में पार्क किया हुआ है, वो गाड़ी के नीचे अगर कुत्ता सोया रहेगा तो गाड़ी चालू करते ही बेचारा उठ के चला जाता है. दूसरे गाड़ी के नीचे चला गया, वहां से गाड़ी चालू किया, वहां से उठ के चला गया, तो एक जगह पे बैठ भी नहीं पाता बेचारा वो. सो द मोर यू कीप योरसेल्फ secluded, separated, the more you'll be stressed. अभी तुम्हारे यहाँ पे अगर कोई कुत्ता पाला हुआ रहेगा तुम लोगों ने, या तो सोसाइटी में पाला है, तो किसी के घर में भी रहेगा, तो तुम कुत्ते से बात करके देखो, क्या कुत्ता एटीट्यूड दिखाता हम लोग की तरह, मैं बात नहीं करेगा, मेरा मूड नहीं है, जा. तुम खाली उसके पास खाना लेके जाओ, एक रोटी लेके जाओ. अगर तुमने एक रोटी भी खिला दिया ना, तो सारा जिंदगी में तुम्हारे साथ वफादारी निभाएगा, वो तुम्हारे साथ आएगा, जब भी तुम वहां पे बैठे रहोगे आएगा अपने आप को. और कभी भी देखना, जिस कुत्ते को तुम रोटी खिलाते हो ना, वो कुत्ता तुम्हें कभी नहीं काटेगा. कुछ भी हो जाए, तुम्हारे आंग पे आएगा, मस्ती करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तुम्हारा पैंट पकड़ के खींचेगा दांत से, शर्ट पकड़ के खींचेगा दांत से, अपने हाथ तुम्हारे बॉडी पे रखेगा, लेकिन कभी खरोच नहीं मारेगा. क्यों? बिकॉज इवन दैट एनिमल ऑल्सो नोज कि यू आर नॉट गिविंग दैट एनिमल अ स्ट्रेस.
by being with you, that animal is also feeling comfortable. That animal is also enjoying your company. And in fact, human being is made such a wonderfully designed body that he or she can make comfortable anyone. But that depends on your nature, human nature. अगर किसी भी जानवर को तुम प्यार से सहला दो, वो काटेगा नहीं कभी. कहीं भी देखो तुम, बिल्ली भी अगर रहेगी उसके पीठ पे तुम प्यार से सहला तो देखो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहेगी, फिर वो काटेगी नहीं कभी. क्यों? बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू गेट रिलीव ऑफ द स्ट्रेस, दे आर ऑल्सो टायर्ड और समथिंग लाइक दैट. बट वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ. मुझे स्ट्रेस आ रहा है, शक्ल पे दिखती है, ये दिखता है, लेकिन जानवरों की शक्ल पे नहीं दिखता. दे ऑल्सो डू गो अंडर दैट. सो to keep yourself away from the stress, that means how to manage the stress, you can do these 2 steps. And the next one is systematic approach, that is altering the factors which contribute to stress. अगर मेरे लेक्चर को बैठ के अगर तुमको लगता है स्ट्रेस मिलता है, मैं तो सजेस्ट करूंगा मत बेटा मेरा लेक्चर. सिंपल. अभी भी देखो 46 लोग है 70 में से, तो 24 लोगों को लगता है कि बाबा विनय सर के लेक्चर बैठूंगा तो बहुत स्ट्रेस आता है अपने को. So they are altering the factors. That means they are finding some other alternative to read or जो study the SPM. नोट से पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे, कहीं से पढ़ेंगे, अपने फ्रेंड्स को पूछेंगे. लेकिन विनय सर का लेक्चर बैठना मतलब स्ट्रेस लगता है, मैं वो स्ट्रेस नहीं लूंगा. सो यू नीड टू फाइंड आउट अप्रोच विच इज परफेक्ट फॉर इट, अनदर अल्टरनेटिव फॉर इट. समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. What this slide is talking about, clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Next, health and safety. Apart from stress, health and safety less likely to be insured compared to the other engineering projects. But sometimes IT infrastructure may be set up as other building work is going on. Obviously, अगर मेरा कोई कंपनी है जहाँ पर अच्छा एनवायरमेंट था, ये था, वो था, लेकिन वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी ना कभी तो खराब होगा ही. अगर ऐसा कुछ आया, रिपेयरिंग का काम आएगा, मैं तुम लोग को बोला कि चलो भाई हम लोग आज दूसरी जगह पे बैठते हैं, कहीं और बैठते हैं, तो वो एनवायरमेंट वैसा नहीं रहेगा जैसे मेरा पहले जैसा था. टेम्पररी है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी रहेगा, लेकिन 1 से 2 साल मुझे वहां पर निकलना तो है. तो अगर वहां पर मेरा सेफ्टी में प्रिकॉशंस नहीं लेते रहेंगे, मेरा हेल्थ वहां पर इफेक्ट होता रहेगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं पूरा कांच का बंद कंपनी में काम करता था, सेंट्रलाइज एसी रहता था, वेंटिलेशन अच्छा था, ये रहता था. अब टेम्पररी हम लोगों ने बाजू वाली बिल्डिंग में, बाजू वाले कॉम्प्लेक्स में लिया हुआ है रेंट पे. वहां पर विंडो ओपन रहता है, कंटिन्यूसली व्हीकल का हॉन्किंग होते रहता है, डस्ट पार्टिकल्स आते रहता है, नॉइज आते रहता है, 24/7 वहां पर रोड के बाजू में है, तो वहां पर फिर व्हीकल्स का आना जाना आवाज आता है. सो दैट विल बी अफेक्टिंग माई हेल्थ इन सम और द अदर वे. दैट ऑल्सो आई नीड टू चेक. So they say that same only. Apart from stress, health and safety less likely to be an issue compared to other engineering projects. But sometimes IT infrastructure may be set up as other building work is going on. UK law lays down that organizations employing over 5 staff should have a written safety policy. Written safety policy matlab how safeguarding how do you safeguard your employees if any mishap occurs. दैट मीन्स अगर आग लगती है, कुछ वहां पे क्रैक आ जाता है, या तो फिर बिल्डिंग गिर जाती है, तो तुम कैसे इवैक्यूएट करोगे तुम्हारे एम्प्लॉयज को, उसका एक तुम्हें सेफ्टी पॉलिसी करके बनाना पड़ता है. अगर अपने कॉलेज में देखोगे ना, तो वहां पर हर एक फ्लोर पे उन्होंने एग्जिट प्लान बनाया हुआ है कि इमरजेंसी में एग्जिट कहाँ से करना है. शायद अपना मॉक ड्रिल भी हुआ था एक, राइट? ग्राउंड पे जाके हम लोग बैठ गए थे एक लेक्चर में, याद है कुछ? Yes, sir. लास्ट ईयर. Yes, sir. वहां पर क्या बोला था तुम लोग को? खिड़की खोल दो और वहां से डोरी पकड़ के कूद जाओ, ऐसा? या सब लोग कूद जाओ, नीचे सिक्योरिटी, नीचे सब लोग सिक्योरिटी गार्ड लोग ना जाली पकड़ के रखे हैं, तुम लोग जाली में गिर जाओ, मजा आएगा तुमको, सब लोग एक साथ जंप करो, एक के ऊपर एक गिर जाओ, ऐसा? No, sir. No. So there were proper evacuation plan was there. Everyone be using staircase. No hush, nothing. You will be going calmly, but not that doesn't mean you looking around here and there, everything is working or not. No, you have to safeguard your life. So तुमको सुरक्षित सतर्क रह के उतरना है. ऐसा नहीं है कि तुम भाग भाग के वहां पे सामने से क्राउड है, उसके ऊपर एक के ऊपर गिरते गए, तो वो क्राउड एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते करते चला गया, मैं आ गया, बाकी सब भाड़ में गए. नो, इट वाज नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट लाइक दैट.
So you should be having some say written safety policy where you will be saying to the employees ki what should do in emergency, how to proceed ahead. So management of safety should be embedded in project management. तो अभी अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हो, तो जैसे अभी कल या परसों ही लाइट गया था ना, परसों याद है? Yes, sir. सब लोगों ने एंजॉय किया रहेगा मंडे को. Nice, sir. What was the incident? Means sad incident happened on that day in central suburbs only. अगर तुम न्यूज पढ़ते रहेंगे तो because of this electricity. सर ग्रिड फेल हो गया था. नहीं वो तो फेल हो गया था, उसकी वजह से और एक नुकसान हो गया सेंट्रल में ही. The trains were, I mean, deserted, not train, life, risk of life. सर वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल का इफेक्ट हो गए थे. सब हॉस्पिटल में जनरेटर्स ठीक है, अवेलेबल बैकअप था. हिंट तू बराबर जा रहा है, लेकिन सब हॉस्पिटल में नहीं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, मुलुंड के एक हॉस्पिटल में आग लग गया था, पढ़ा रहेगा न्यूज में. तो मुलुंड के एक हॉस्पिटल में आग लग गया था. कैसे? अब अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर बॉम्बे में जाता है ना, तो कितने घंटे के लिए जाता है मैक्स टू मैक्स? सर 1 आवर मैक्स टू मैक्स 1.5. 3 घंटा पकड़ लो, मैक्स टू मैक्स 3 घंटा जाता है. तब तक अपना काम हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जो भी प्रॉब्लम रहेगा. 3 घंटा मैक्स टू मैक्स. अब अगर हॉस्पिटल भी अगर बैकअप रखेगा, जनरेटर रहने दो, कुछ भी रहने दो, कितने घंटे का रखेगा? 3 से 4 घंटे का रखेगा ना. लेकिन उस दिन गया कितने बजे? 10 बजे. चालू कितने बजे हुआ आने के लिए? 4 बजे चालू हुआ पार्ट में आने के लिए. तो 6 घंटे के लिए अगर जाएगा लाइट, और हॉस्पिटल में अगर वेंटिलेटर पे सब पेशेंट लोग हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जनरेटर चालू करना पड़ेगा या तो इन्वर्टर चालू करना पड़ेगा. लेकिन वो जनरेटर भी तो एक डिवाइस ही है, मशीन ही है जो पेट्रोल पे चलता है. गर्म हो के जनरेटर फट गया मुलुंड के हॉस्पिटल में, और वहां पे आग लग गया, जिसकी वजह से 40 पेशेंट लोग हॉस्पिटल में थे, उनको दूसरे के पे शिफ्ट कर दिया. किसी को फोर्टिस में लेके गए, किसी को ये बीकेसी में कहीं पे तो लेके गए. लेकिन एक पेशेंट मर गया उसमें से. ही सक्कम टू द इंजरीज. आग में से उसको जल गया था वो, तो वो पेशेंट मर गया. तो अब यहाँ पर गलती किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. सर ये जो दिख रहा है ना, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, Management. Okay. Yes, sir. they were not having proper management of safety of patients, because you have to be ready. If you're running a hospital, if you're running a clinic, if you're running any health safety wala, it is your duty to make sure that you are ready to face any conditions, situation, whether it is critical to critical or rare to rare or whatever it is. Because playing with life of human being is not at all acceptable anywhere in the world. And you just can't say sorry to the relatives who have lost a person or who has lost a member of their family. वो जो इंसान जो आग से झुलस के मर गया, उसकी गलती थी ये मुलुंड के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना. उसको पता था कि वो मरने वाला है. अगर मरने वाला है पता होता तो फिर वो तो एडमिट ही नहीं होता. फैमिली मेंबर ने सोचा कि प्राइवेट में एडमिट किया है, मुलुंड में एडमिट किया है, महंगा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, चलो ठीक होके आ जाएगा. कोरोना नहीं है, दूसरा कोई रहेगा, दूसरा कुछ था. वो कोरोना हॉस्पिटल नहीं था वो, तो वो डेथ हो गई. अब हॉस्पिटल अगर खाली उनके रिलेटिव्स को सॉरी बोल देगा, सपोज सॉरी वी कुडंट सेव योर रिलेटिव, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, डू यू थिंक इट विल बी डन? That will be covering? Obviously not. No, sir. So management of safety, it has to be there in each and every project management. Clear with this slide, everyone? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone Yes, need sir. to ask anything in this? No, sir. Yes, sir. No, sir.
Okay. Next. Continued. Read. Top management must be committed to health and safety policies. Yes, our college is also committed. You will see the exit plan on every floor, and you will make sure that in case of emergency, everyone is cooperating, making sure all the students are going out, and then only the teachers or the staffs will be trying to coming out. Okay, so the top management must be committed to health and safety policies. Delegation of responsibility relating to health and safety should be clear. अगर तुम देखोगे ना, उस दिन ना आधे टीचर लोग ना रेड कलर कैप पहने हुए थे. अगर जिस दिन मॉक ड्रिल किया उस दिन देखा रहेगा तुमने, तो रेड कलर का कैप पहने थे, देखा था? Yes, sir. Yes. What does the red color का कैप indicate? It says that कि you are firefighting in charge of your floor, and you will be the last person coming out of in any such case happens. That means उस दिन मुझे भी कैप दिया गया था, मुझे बोला गया था कि 8th फ्लोर के अंदर जितने भी पब्लिक रहेंगे, बच्चे लोग रहने दो, स्टाफ रहने दो, लेडीज रहने दो, कोई भी रहने दो, उन सबको सेफली निकालना तुम्हारा जिम्मेदारी है. Not only me, but Mithilesh sir was there, Ashish sir was there, Hamid sir was there, Tushar sir was there, male faculties, and in female Sujata ma'am was there, Nabila ma'am was there. So that means you are the having extra duty or extra responsibilities to evacuate the students and other staff members safely, and then you also come safely. That doesn't mean that our life is being risked. No. Such people are trained separately how to behave in such situation, because everyone will get panic. आग देखते ही कोई खुशी नहीं मनाते, कोई पटाखे नहीं जलाते आग देख के, वाह वाह आग लग गई, चलो चलो हम लोग अपना पटाखा जलाते हैं जो बचा हुआ था लास्ट ईयर का, अभी वैसे भी वेस्ट होने वाला नहीं. हर एक कोई पैनिक होता ही है, लेकिन हर एक अगर पैनिक हो गया तो फिर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? वहां पर तो और ज्यादा बोलते ना नुकसान होना ही है. तो वहां पे अलग से 5-6 लोगों को ट्रेन किया जाता है, जहां पर उनको बोला जाता है कि ऐसे सिचुएशन में तुमको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है. सो वैसा लिफ्ट बंद कर दो, इलेक्ट्रिसिटी सब बंद कर दो सब, फिर बाद में धीरे धीरे करके स्टेयरकेस के थ्रू एक एक को निकालते जाओ. तो वो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होना चाहिए. जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी इंक्लूडेड इन हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तुम्हारा काम क्या है वो भी तुमको अच्छे से पता होना चाहिए. तुम्हारी जिम्मेदारी पता है तुमको, सबको निकालना है, यस ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन निकालना मतलब कैसे निकालना है भाई? उठा के खिड़की में से फेंक देना है क्या नीचे? लो भाई पकड़ो, कैश पकड़ो सब बच्चों को? नहीं, तुम्हारा जिम्मेदारी पता है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाना कैसे है वो भी तुमको आना चाहिए. तो जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी इंक्लूडेड इन हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नीड टू एंश्योर दोज गिवन एचएनएस रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देम. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आग लग गई, मैं देखा, डर गया, सबसे पहले मैं भाग के आ गया और तुम लोग ऊपर से चिल्ला रहा हूँ, अरे तुम लोग आ जाओ नीचे आ जाओ, सीढ़ियों से आ जाओ, मैं आ गया. नो, you cannot accept that kind of attitude, that kind of nature when you are given the responsibility or when you are given the other job or other description where you are supposed to stay there and make sure that each and everyone has been evacuated, and then only you come. And if you're not comfortable in that, then that should be clearly stated and said that कि sir ये मेरे से नहीं होगा, मैं अपनी जान को जोखिम में नहीं डालूंगा. Simple, straight. Rather than saying yes, and then when the time comes to act, that time you will be the first one to running out of the building. That should not be the case. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. I hope everyone is here only. कोई भाग तो नहीं गया ना? Yes, sir. गई करके? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Okay, इधर ही है. Okay. Next, there should be a designated safety officer. जैसे मैंने कहा, हर एक फ्लोर पे एक हम लोग को दिया गया था. अब 8 फ्लोर पे कम से कम 10 से 12 रूम है. अब 10 से 12 रूम में मैं अकेले भागते रहूंगा तो सब लोग निकल जाएंगे. मेरा फोटो हर लग जाएगा वहां पे, फिर कॉलेज में स्टाफ रूम में, तो लाइब्रेरी में, पैसेज में मेरा फोटो लग जाएगा वहां पे. So in that case, what to be done? There should be designated safety officer, not 1, 2, as much as possible, and train them. Staff, particularly knowledgeable technical specialist, should consulted about safety. जिनको ट्रेनिंग दिया गया है उनको पूछो कि अभी हम लोग कैसे जाएं करके, क्या करना है करके. Then they will be guiding you. And there should be an adequate health and safety budget. वहां पर बजट होना चाहिए, मतलब प्रोविजन होना चाहिए.
जैसे तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विशर देखोगे ना हर एक क्लासरूम में शायद से है, हर एक क्लासरूम में फायर एक्सटिंग्विशर या हर एक फ्लोर पे है फायर एक्सटिंग्विशर। और हर एक फ्लोर पे पानी का जो पाइपलाइन आता है ना, सर हर एक फ्लोर पे है ना, हर एक फ्लोर पे है शायद Yes, से। sir. लाइब्रेरी में भी है, every floor पे। स्टाफ रूम में है। हाँ, लैब रूम। और देखोगे ना तो मोस्टली हर एक फ्लोर पे देखो तुम लोग, पानी का जो पाइप रहता है ना वो आग बुझाने के लिए, वैसा भी प्रोविजन किया गया है हर एक फ्लोर पे शायद से है। सीढ़ी के इधर। हाँ Yes, सर sir. है सीढ़ियों के इधर है ना वो कांच का वो पाइप, वहां पे पाइप गुंडाल के रखा है, उसको सर्कल करके रखा हुआ है। हाँ तो है मतलब सर। क्या है, बजट मतलब क्या है, सिर्फ बजट रखना नहीं चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट भी करो, उसको यूज भी करो। इट मीन्स दैट ओवर देयर गेटिंग। सो हेल्थ एंड सेफ्टी में ये सब पार्ट आता है। क्लियर विद दिस एवरीवन? यस Yes, सर sir. Yes, sir. Slide number 22. Yes, sir. We will continue in next lecture. Let me give the attendance का link so that you can attend the next lecture. I think you have next lecture also, na? No, sir, we have 3 lectures. No sir, last lecture था। Okay, this is last lecture. This is. Attendance का link आ गया रहेगा देखो। 45 entries मुझे चाहिए। Once you're done with the attendance, you can leave the meeting and get comfortable. Till we meet next lecture, everyone have the health and safety concerns. Everyone stay home, stay safe, take care. Bye bye.